Now on page number 69, look at the picture given below. Write at, in, on, near, over or under from the brackets as needed. Okay, now you have to fill the blank spaces with the correct prepositions given in the brackets. Okay, so let us read this. Priya went to the park. She saw her friends there. Rohit was standing on or under a tree. अब रोहित was ट्री के आसपास में कौन खड़ा है? यहाँ पे रोहित खड़ा है ना. So he was standing under, ट्री के नीचे खड़ा है, ट्री पे नहीं खड़ा है. ओके, सो क्या आ जाएगा यहाँ पर? Under a tree. Okay, so you will write here under. Rohit was standing under a tree. ठीक है. He was looking at or on नीति. तो on नीति हम नहीं बोलते. He was looking at नीति बोलते हैं ना. He was looking at me. He was looking at Saurabh. He was looking at नीति. At is used. ठीक है. Then a small bird flew into the tree. ट्री के अंदर तो कोई भाग के आता नहीं है, और यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ट्री के ऊपर से उड़ रही है. So a small bird flew over the tree. Okay, so क्या preposition आएगा? Over the tree. नीति was happy in the swing. swing के अंदर नहीं, swing पे बैठते हैं ना, तो नीति was happy on the swing. ठीक है, swing पे नीति बहुत खुश थी. Okay, so like this. Now the rest of the prepositions you have to read the sentences very carefully, look at the picture also, and then fill in the blanks with the correct prepositions. Okay, now we will start with the next chapter. Chapter number 26, joining words. Now children, if you remember, joining words also we have studied in the English course book back exercises, है ना. जो words दो sentences को join करती है उसे हम क्या कहते हैं? joining words. और इन joining words को हम जिस नाम से बुलाते हैं वो है conjunctions, है ना. हमने पढ़ा था ना conjunctions के बारे में. So conjunctions are the joining words. आप conjunctions भी बोल सकते हैं या joining words भी बोल सकते हैं. So joining words और conjunctions are the words that join two sentences together. जैसे and, but, और. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो sentences को क्या करते हैं? join करते हैं. Okay, let us read the sentences over here. Mother brought oranges, grapes and bananas for me. ठीक है, so and is joining these sentences together, है ना. Then oranges were sweet but the grapes were sour. Oranges sweet थे लेकिन grapes sour थे. And का मतलब है और, but का मतलब है लेकिन. ठीक है, तो oranges were sweet but grapes were sour. इन दोनों sentences को कौन से word ने join किया? but ने. Mother asked if I wanted to eat oranges or bananas. मदर ने पूछा कि क्या मुझे ऑरेंज चाहिए या बनाना चाहिए. तो and का मतलब और, but का मतलब लेकिन, और का मतलब या. and कब लगता है? जब सिमिलर चीज़ों को आपको जोड़ना हो, सेम चीज़ों को. ठीक है, अब मदर ऑरेंज भी लाई थी, ग्रेप भी लाई थी, बनाना भी लाई थी, सारे एक तरीके के फ्रूट्स हैं, तो सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए हमने and यूज़ करा. ओके, सो सिमिलर आइडियाज़, when we join together similar ideas we join with the help of and. Okay, but opposite ideas को, अलग अलग बातों को, बिल्कुल अलग बातों को, है ना, विपरीत बातों को ज्वाइन करने के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ऑरेंज तो स्वीट है लेकिन ग्रेप्स क्या है? सार है. दोनों अलग अलग बात है, एक स्वीट है एक सार है. तो डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं एज कंजक्शन. ठीक है, और जब हमें किसी चीज़ के बारे में ऑप्शन हो, किसी चीज़ में हमें ऑप्शन दिया जाता है ना, या तो ये करो या वो करो, है ना. जब ऑप्शन दिया जाता है तब हम जो वर्ड्स, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज और. ठीक है, मदर ने पूछा क्या मुझे ऑरेंज चाहिए या बनाना चाहिए, तो मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है. सो दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड और एज द कंजक्शन. ओके, सो नाउ टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. अब आपको सही वर्ड आपको बताना है. ठीक है, एंड लगेगा या बट लगेगा, तो आपको
यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, ठीक है. सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन करना है या डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन करना है या ऑप्शन दिया जा रहा है. Okay, so you have to read the sentence carefully and then you have to put the correct conjunctions. Okay, now see the first one. I have a big doll, a small doll. ठीक है, अब I have a big doll, small doll, मतलब मेरे पास एक big doll भी है और एक small doll भी है, तो और आ रहा है ना. बिग बड़ी डॉल भी है, छोटी डॉल भी है, तो आप क्या लगाएंगे? And I have a big doll and a small doll. ठीक है. I like pizzas, I do not like burgers. अब एक में तो पसंद है आ रहा है और एक में नहीं पसंद है आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट आइडियाज हो गए. पिज़्ज़ास पसंद है, बर्गर नहीं पसंद है, तो आप क्या लगाएंगे? डिफरेंट आइडियाज है, एक पसंद है एक नापसंद बता रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? बट. सो द सेंटेंस विल बी आई लाइक पिज़्ज़ास बट आई डू नॉट लाइक बर्गर्स. ओके. थर्ड वन. Mother asked if the grapes were sweet. क्या आएगा? और सार, है ना. क्यों? क्योंकि मदर ने पूछा कि क्या ग्रेप्स स्वीट है या सार है, मीठी है या खट्टी है, इसलिए और आएगा. ठीक है. She packed the bag, went to school. तो क्या आएगा? She packed the bag. पैक किसने करा बैग को? स्कूल जाने के लिए. सेम आइडियाज है, तो सेम आइडियाज को हम किससे ज्वाइन करेंगे? एंड से. ठीक है. और एक बार आप ज्वाइन करके यू रीड द सेंटेंस ऑल्सो. ठीक है. आफ्टर ज्वाइनिंग यू रीड द सेंटेंस ऑल्सो दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. रीड करने से भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि सही लग रहा है या गलत लग रहा है. शी पैक्ड द बैग एंड वेंट टू स्कूल. वो बैग पैक करी और स्कूल चली गई, तो सेंटेंस इज करेक्ट. Okay, now 5th, 6th, 7th and 8th you will do on your own. ठीक है. Read it carefully and put the correct tick on the correct conjunctions. Okay, now the next exercise, page number 71. Fill in the blanks with and, or but. तो आपको सही जगह पर and, or या but लगाना है. ठीक है. So, Shoaib went to the bakery. He asked for a chocolate. He asked for a chocolate cake, a patty, dash some cookies. तो क्या है? शोएब बेकरी में गया, उसने एक चॉकलेट केक के लिए मांगा, एक पैटी मांगा और कुछ कुकीज मांगे, है ना. और आएगा यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? एंड सम कुकीज. ओके. शोएब वेंट टू द बेकरी. ही आस्क्ड फॉर अ चॉकलेट केक, अ पैटी एंड सम कुकीज. He also wanted a plum cake. It was not there. उसको एक प्लम केक भी चाहिए था, लेकिन वो it was not there, है ना. चाहिए था बट नहीं था, तो क्या आना चाहिए? डिफरेंट आइडियाज है, तो but. He also wanted a plum cake but it was not there. लेकिन वो वहाँ नहीं था. The baker said to him, do you want to eat the patty? Should I pack it? अब ये भी ऑप्शन कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है. क्या तुम पैटी खाना चाहते हो? शुड आई पैक इट. क्या आना चाहिए? और शुड आई पैक इट. क्या तुम खाना चाहते हो या मैं इसे पैक करूं? ठीक है. ओके. सो इसलिए यहाँ पर क्या आया? और. शोएब सेड आई विल टेक इट होम, ईट इट लेटर. मतलब मैं इसको घर ले जाऊंगा और बाद में खाऊंगा, तो और आया. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा and. I will take it home and eat it later. So many times if you convert the sentences into Hindi, then also you are able to fill in the correct words. हिंदी में convert करेंगे तो भी आपको बहुत बड़ी help मिलेगी sentences को सही conjunctions को fill करने के लिए, या कोई भी prepositions हो, conjunctions हो, कोई भी चीज़ हो, एक बार आप हिंदी में convert करो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा easy हो जाता है. Okay? Now second and third I want you to do on your own. ठीक है. Second and third आप read करेंगे and then you fill it. Okay. Later on I will give you the answers. Okay. Now let's do the next chapter. Chapter number 27. Who, what, where, which, when. इसको हम कहते हैं question words. What do we say? We say it question words. ये सारे words जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं question words. ठीक है. इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ठीक है. हु इज योर टीचर?
What is your name? Where are you living? Which is your pencil? When do you go to school? है ना? So all these words are used in asking a question. क्वेश्चन पूछने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स. आई थिंक ये वाला भी हमने करा हुआ है इन द बैक एक्सरसाइजेस ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक. ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है. ठीक है, उसके अंदर क्या है? लायन का पार्टी है, लायन का बर्थडे है, तो उसके लिए एक पार्टी रखी गई है. ठीक है, हैप्पी बर्थडे लायन किंग. तो लायन क्वेश्चन पूछ रहा है, थैंक यू, व्हाट डू यू प्लान टू डू टुडे? तुम आज क्या करना चाहते हो? व्हाट आया? क्वेश्चन वर्ड. ओके, वेयर आर द गेस्ट्स? वे गेस्ट्स कहाँ हैं? विच गेम्स हैव यू प्लान फॉर द पार्टी? कौन कौन से गेम्स आपने मेरे लिए प्लान किया है? विच मीन्स कौन कौन से. ओके, तो वी हैव प्लान द गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स. हमने म्यूजिकल चेयर्स प्लान किया है. देन और क्या पूछता है? हु इज गोइंग टू कट माई केक? हु मीन्स कौन. वेन डू आई कट इट? वेन मीन्स कब. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं. फिर ये कहते हैं कि पैरट केक लाएगी आपके लिए और हम कट करेंगे जब सब लोग आ जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स को बताया जा रहा है कि ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स है. ओके, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया क्या है, क्या मतलब है सबका. ठीक है, वॉट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन से, है ना. हु मीन्स कौन, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ. ठीक है, सो ये है क्वेश्चन वर्ड्स. नाउ यू हैव टू टेक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. ओके, व्हाट और व्हेन डिड यू ईट? व्हेन डिड यू ईट? व्हाट और व्हेन डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? तो डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट क्या आना चाहिए? व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, है ना. व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्या खाया. डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड क्या आना चाहिए? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, हम व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नहीं पूछते ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. डैश इज अपूर्वा राइट नाउ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो कहाँ है? वेयर इज अपूर्वा राइट नाउ. राइट नाउ इस वक्त अपूर्वा कहाँ है. ओके, डैश इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास. कौन है तुम्हारे क्लास में टॉलेस्ट बॉय? तो क्या आना चाहिए? हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास. ठीक है, ओके बेटा. सो लाइक दिस 5th and 6th you do on your own. एंड ओके, इधर भी है 5th से लेकर 10th तक you do on your own. Read the sentences very carefully and take the correct option. उसके बाद next, fill in the blanks with who, which, what, when or where. You may use these words more than once. अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करेक्ट वर्ड्स फिल करना है. कौन से वर्ड्स? क्वेश्चन वर्ड्स. और आप एक ही क्वेश्चन वर्ड को बार बार भी अगर ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप ये ना सोचिए कि एक जगह विच यूज़ हो गया तो वापस विच यूज़ नहीं हो सकता. ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन ओवर हियर. यू मे यूज़ दीज वर्ड्स मोर दैन वंस. एक से ज़्यादा बार आप यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो. ठीक है, लाइक द फर्स्ट वन, डैश डू यू लीव फॉर ऑफिस. आप ऑफिस के लिए कब निकलते हो? तो कब के लिए क्या आना चाहिए? व्हेन. क्या हो गया क्वेश्चन? व्हेन डू यू लीव फॉर ऑफिस. ओके, नेक्स्ट, डैश इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर क्वेश्चन मार्क है. क्या आएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर. क्लास टीचर का क्या नाम है? डैश गिफ्टेड दिस ब्यूटिफुल ड्रेस टू यू. ये ब्यूटिफुल ड्रेस आपको किसने गिफ्ट किया? तो क्या आएगा चिल्ड्रन? हु गिफ्टेड दिस ब्यूटिफुल ड्रेस टू यू. ओके, देन नेक्स्ट, डैश वाटर बॉटल विल यू कैरी टुडे. वाटर बॉटल विल यू कैरी टुडे. तो वेयर भी नहीं आएगा, वेन भी नहीं आएगा, हु भी नहीं आएगा, वॉट भी नहीं. क्या आना चाहिए? विच वाटर बॉटल विल यू कैरी टुडे. कौन सा वाटर बॉटल आज आप कैरी करेंगे. ओके, नाउ सिमिलरली 5 से लेकर 10 तक आप खुद से अच्छे से रीड करेंगे एंड देन यू विल फिल इट विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स. ओके,
ठीक है. So we have completed till the 27th chapter beta. Now 2 more chapters are remaining, that is your comprehension, and 1 more chapter is remaining. Okay, 29th chapter. 28 and 29 chapters remaining. Till here you complete. Okay, if you have any confusions you can ask.